Welcome to Q Physics Academy, and this is Mithun. So, uh, in the previous lectures, the lecture number 1 to lecture number 14 for electrostatics and magnetostatics for IIT जैम्स एंड CUCT का जो लेक्चर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसी लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं electrostatics energy for continuous charge distributions, because we had already discussed the how to calculate the electrostatics energy for discrete charge systems, and also we discussed some important problems also, right? So here it's time to move on. जो कैलकुलेशंस हम लोगों ने ऑलरेडी किया उसी को थोड़ा बहुत आगे लेके जाएंगे और एक्सप्रेशंस को और डिटेल समझेंगे, और जिस जो एक्सप्रेशंस बेसिकली जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए। आप कैसे प्रॉब्लम को डील करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम डील करना एक बात है, प्रॉब्लम के साथ कुछ सीखना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम डील करना है, प्रॉब्लम डील करते करते आपको कुछ ना कुछ सब कुछ सीखना भी पड़ेगा, तब जाके आप IIT जैम एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। ओके, सो हियर we are already know the electrostatics energy for continuous charge system. ओके, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम के लिए हम एक्चुअली देखने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी बेसिकली क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल, राइट। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, वी टेक ए वॉल्यूम एलिमेंट, I take a sphere, this is 3D case, this is 3D, and here the charge is uniformly distributed. Okay, here charge is uniformly distributed. Okay, so let us consider a sphere of volume charge density, okay, rho. Okay, so it means the total charge we can calculate using this volume charge density. This is rho dV. But now in our case, take a volume element. First of all, we take a volume element to understand the problems in better way. So first of all, we take a volume element, right? Let us take in volume elements at a distance r, and this is the volume element. So first, let us consider a volume element dv at a distance, not dv, that is d tau, take d tau, at a distance r. Okay, now the charge contained within this volume element, charge content within this
volume element is dq equals to rho into theta. This is the equation number 1. Now for this charge element at a distance r, we can calculate the potentials also, that is v of r. Okay, so as you know the potential and the charge content within this volume element, then we can easily calculate the electrostatics energy. So how to calculate this electrostatics energy basically? So for this electrostatics energy, okay, energy W is equals to half integrations rho d tau into potential. If I write in nice way, that is equals to volume element uh, potential at r into d tau. So this is the actually expressions. This is the actual expressions to calculate the electrostatics energy when volume charge density is given. Okay, in the similar way, right? In the similar way, we can calculate the electrostatics energy for surface charge density as well as for line charge density. Okay, take surface charge density. Sigma is given, right? Then W electrostatics energy is equals to half rho potential at that point while take the basically surface element at a r into ds. Okay, and for also the line charge density, line charge density lambda is given, then you calculate the electrostatics energy, that is equals to lambda, and potential at that point r where take the line element dl, and then you integrate over. Okay, so in this way, when volume charge density given and surface charge density given and the line charge density given, you can calculate the electrostatics energy. But uh, but you know, we deal another problems also. Let us consider, the electric field from this charge distribution. So how can you deal this type of problems, right? So I mean, you consider a uniform charge sphere, and you already know the electric field at any point inside the sphere, surface of the sphere, and the outside of the spheres also. So that kind of problems, how can I deal? And for this kind of case, how can I calculate the electrostatics energy? I mean, when electric field is given for a given system, so how can you calculate the electrostatics energy? This is the another important case also we'll learn here. Okay, so when this is case 2, basically when electric field is given means we know actually we know, then electrostatics energy then electrostatics energy W is equals to half epsilon naught, that is equals to all space square into d tau actually, square into d tau. All space means 0 to infinity, right? If I take the solid sphere, then all space means 0 to r and r to infinity, basically 0 to r. Within this range we can calculate the electric field, and r to infinity outside the sphere we can also know the electric field. Okay, so this is the case actually. When you know the electric field, in this way you can calculate the electrostatics energy also. So if we write this formula for sphere, okay, for
uniform charge sphere, uniform charge sphere, then it is equals to W equals to half epsilon naught 0 to R E inside square into d tau plus R to infinity E out square into d tau. So in this way you can calculate the electrostatics energy when a given system electric field is given, right? So these are the basic formula to calculate the electrostatics energy for continuous charge distributions. Okay, now we can calculate the energy of a conducting sphere. Let us take a special case. So example 1. Example 1 is kind of find the energy, find the electrostatics energy of a conducting sphere, of a conducting sphere of radius r and total charge q, and total charge q. Okay, so there will be conducting sphere, so total charge q. We know the properties of conducting sphere. The all the charge, inside charge, are basically placed at the surface of the conducting sphere. So it is the basic logic of conducting sphere. So all charge is distributed in the at the surface of conducting sphere. So basically there is no charge inside the conducting sphere. Okay, all charges are actually distributed over the surface, over surface. Okay, so as there is no charge inside the conducting sphere, so for conducting sphere, no charge at inside point. Okay, another point, all charge distributed, all charge distributed across the surface. Okay, all charge distributed across the surface. So it's another very important points for conducting sphere. Right, now the case is, as inside this conducting sphere there is no charge, so electric field also zero. So there is a electric field is zero. And we know the electric field outside point electric field. So electric field inside point is zero, outside point is very easy, q square upon 4 pi epsilon naught r square. So these are the electric field for conducting sphere. Basically we are know. So I had already mentioned, actually I was already mentioned the electric field when given. I mean we are know actually electric field at the inside point as well as the outside point. So this is we already know. So as electric field we are know, then we easily calculate the electrostatics energy for a conducting sphere. So how can I calculate that? So electrostatics energy W is equals to half epsilon naught all space is square theta. All space means we're just divided in two part, 0 inside point 0 to r and r to infinity actually. Okay, so that is equals to epsilon naught 0 to r e inside square theta plus r to infinity 0 out square theta.
So as we know, inside point electric field is zero, so there is no contribution to calculate the electrostatics energy, right? So that is equals to half epsilon naught, half epsilon naught, okay, half epsilon naught R to infinity E out square theta. So E out is equals to, already we are know, so this is known term, so this is equals to q to the power 4 16 pi square epsilon naught square r to the power 4 into theta, right? R to the power 4 into theta. Okay, so theta is nothing but volume element, so we take 4 pi epsilon naught, I take 4 pi r square dr actually. Okay, so okay, so so we are already discussed here the very important case actually. So in this way, we can calculate the electrostatics energy for a uniformly charged sphere. Okay, we take another problems also. Then the concept of electrostatics energy calculations will be clear, right? Will clear. So it should be clear after we discuss all the problems in proper way, राइट सो आप लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम को ना अच्छे से सीखना होगा, कैसे इस तरह का प्रॉब्लम को सीखना है, कैसे इस तरह का प्रॉब्लम को डील करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया, ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम्स था। तो इसी प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कैलकुलेशंस को सीखा, राइट। इसके बाद फर्दर हम लोग और भी थोड़ा बहुत तगड़ा प्रॉब्लम लेंगे जो नेट गेट सी एस एन नेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तब जाके तुम्हारा प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत और भी इलाबोरेट होने वाले हैं। तो देखते हैं। तो चलिए, इस तरह कैलकुलेशंस, आई होप तुम लोगों ने इस तरह कैलकुलेशन, तुमने इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट किया। आप लोग देख लीजिए अभी क्या होने वाला है इस कैलकुलेशन में। सो हाफ एप्सिलॉन नॉट q to the power 4 16 pi square epsilon naught square r to infinity 1 by r to the power 4 into 4 pi r square dr. Okay, so that is equals to half epsilon naught q to the power 4 16 pi square epsilon naught square into 4 pi r to infinity 1 by r square dr. Okay, so that is equals to q to the power 4 32 32 not 32, that is equals to 4 8 pi epsilon naught into minus 1 by r to infinity. Okay, so that is equals to q, okay, not q 4, q square. Okay, q square. Okay, yes, q square 8 pi epsilon naught minus 1 by infinity plus 1 by r, so it is equals to q square 8 pi epsilon naught r. So this is the electrostatics energy calculations for a conducting sphere. Please remember this value. This is the electrostatics energy calculations for a conducting spheres actually. Okay, next we take uh, another problems also. That is the case, find the electrostatics energy for uniformly charged sphere. So how can I calculate this type of problems? It is very very important. Okay, okay, okay. Now we calculate the another problems actually.
The problem is, so questions. Question number 2, find the energy of a uniformly charged sphere. Okay, of radius r and total charge q. कैसे करना है? देखो, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो लोग को इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता है, वो लोग तो कर लेगा ये बड़ा प्रॉब्लम। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे अभी तक, सोच रहे हैं हम लोग बाद में पढ़ाई करेंगे, देखते हैं, अभी तो 2-3 महीना बाकी है जैम का एग्ज़ाम, वो लोगों से होगा नहीं। अगर तुम लोगों को अच्छे से रिजल्ट करना है ना, अभी से सीरियस हो जाओ भाई। सीरियस होना इम्पोर्टेंट है। अभी ये जो प्रॉब्लम्स मैंने लिखा, इस प्रॉब्लम को तुम खुद से ही कर लेना चाहिए, है ना। मैंने प्रॉब्लम बोला, अपने कॉपी पेन आपके साथ है, अब लोग स्टार्ट कर दिया, बस ये अच्छा बात है, प्रिपरेशंस के लिए अच्छा बात है। मतलब तुम लोग प्रिपरेशंस में ना आगे आगे, ऐसा नहीं तुम लोग जस्ट सोच रहे हो नहीं मुझे बस अभी हम लोग पढ़ाई नहीं किया, अभी तो दीपावली चल रहा है, आज तो दीपावली का वीडियो मैं नहीं देखना चाहता हूँ। ठीक है, दीपावली ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तुम दीपावली के बाद तो देख रही हो, तब तो तुमको इस लेक्चर्स को अच्छे से डील करना आता है। अगर तुमको आता है तुम इस वीडियो को पॉज करके ये वाला प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लोगे, तो पहले तो सॉल्व कर लो, है ना। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मेरे साथ एक बार चेक करो, देखो तुम क्या आपका तुम्हारा पोजीशन किस में लाई करता है, तुम कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। तो इस तरह के बेसिक प्रॉब्लम्स को ना टीचर्स के ऊपर छोड़ना नहीं, ये खुद के ऊपर लेना। हाँ, मैं खुद इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको सॉल्व करूँगा। ये एक जो रैंक होल्डर स्टूडेंट होता है उसका माइंड सेट होता है। तो जो रैंक होल्डर स्टूडेंट है उसका माइंड सेट ही अलग हो, तो वो उस तरह का माइंड सेट पे आना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंड सेट ही बेकार है, तुम सोच रहे हो नहीं चलो छोड़ते हैं इसको, देखते हैं क्या कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे बोला ना, जब यूनिफॉर्म चार्ज भी है तो उसके तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए, हाँ इस ओके इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशंस का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है चैनल में, तुमने नहीं देखा, ये तुम्हारा फॉल्ट है। देखो इसको सॉल्व करो, ठीक है मैं करवा देता हूँ इधर, बट ये तुम्हारे के लिए बस एक प्रिपरेशंस का गुड साइन नहीं है, ठीक है। चलो ओके, कैसे करना है देखो, तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, राइट, इसका रेडियस आर है। तो ऑलरेडी वी आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट में क्या होता है, क्यू आर अपॉन 4πε0 आर क्यूब आर कैप। ई आउट में क्या होता है, क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आर कैप। मैंने जो लोग क्लास किया है ना उस लोग पता है, मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। इनसाइड पॉइंट के लिए मैंने बोला था क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए मैंने ये भी बोला था 1/r² के नहीं, उसका चेंज होता है, वेरी होता है, मैंने डिस्कस किया, है ना। तो अगर तुम लोगों ने पढ़ाई कर रहे हो आराम से तो हो जाएगा। अब जिसको पता नहीं, अब लोग एक बार देखो भाई, उस लेक्चर्स को एक बार जाके देखो, हो जाएगा, है ना। बस थोड़ा मेहनत करना है, ऐसा नहीं होगा, होगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, राइट। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी एग्ज़ाम का तो फेस्टिवल स्टार्ट होगा दिसंबर से, है ना। तो उससे तुम्हारा अगर अच्छे से तुम कुछ ना कुछ तुमको फिजिक्स में आता है, तुम बीएससी कंप्लीट किया है, मान लो कोई ड्रॉप लिया है उसको तो आता है, तुमने बीएससी कंप्लीट किया है, तो बीएससी कंप्लीट किया है इसका मतलब तुमको कुछ ना कुछ आता है ना। तुमको जस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्रश अप करना है, बस यही हम इस वीडियो में यही हो रहा है ना, और कुछ नहीं हो रहा है, राइट। तो ओके, वी आर ऑलरेडी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर एंड ऑल्सो आउटसाइड द स्फीयर, तो पता है। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, 12 ε0
ऑल स्पेस के लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर लेना है, देन वॉल्यूम एलिमेंट के साथ इंटीग्रेट करना है। देन इसको तुमको जस्ट दो पार्ट में इसको डिवाइड करो, 0 से लेके r, ई इनसाइड स्क्वायर का डी टाउ करो, r से लेके इन्फिनिटी, ई आउट स्क्वायर करेगा डी टाउ करो। बस तुमको सब कुछ पता है, जस्ट इसको तुमको सॉल्व करना है भाई, इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये बहुत ईजी है ना। 0 से r, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r टू द पावर 6 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आ रहा है ना, प्लस r टू इन्फिनिटी क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1 बाई आर टू द पावर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, अगेन वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आ रहा है। बस हो गया, देखो कितना आसान सा प्रॉब्लम था। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सॉरी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, एक सेकेंड, यस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। थोड़ा सा जो पेन में ना, पेन टैप में थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है, अगर जो जिसमें हम लोग लिख रहे हैं इस पेज में, तो थोड़ा उसका फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 सेकेंड लगता है जस्ट, राइट। उससे पहले तुम लोग कर लो, सॉल्व कर लो, खुद से एक बार सॉल्व कर लो ना, खुद से सॉल्व करोगे, बस यही तो बात है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, देखो बस मुझे तुम लोग आंसर बता दो क्या आ रहा है। हाँ, आंसर क्या आ रहा है ये बता दो, बस यही बात है, मुझे वही चाहिए। तुमने इसको इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, मैं जस्ट 2-3 लाइन लिखूंगा बस, और कुछ नहीं लिखने वाला हूँ, है ना। इसका रिजल्ट तुमको खुद से ही करना होगा, कैसे करना है खुद देख लो इसको। ये बहुत ही सिंपल सा एक इंटीग्रेशन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन था। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r टू द पावर 6 0 to 4 okay r to the power 4 dr प्लस इसको तुमने सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा 1 पाई एप्सिलॉन 0 r, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये वाला पार्ट, है ना। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद 6/5 क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो देखो इससे एक प्रॉब्लम भी आया था, जो जैम का क्वेश्चन में आया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्यों मैंने इसको लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद ना तुम्हारे पास एक रिजल्ट भी आएगा, है ना। उस रिजल्ट को, जैम में क्या क्वेश्चन था, देखो जैम में क्वेश्चन था जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी फॉर कंडक्टिंग स्फीयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसका रेशियो कैलकुलेट करो, जस्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इतनी आसान था क्वेश्चन। देखो तुमको अगर थ्योरी पता है ना, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुम कर लोगे। मतलब तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारे से होगा कि नहीं होगा, मतलब तुमको कैलकुलेट करना होगा, बट एग्ज़ाम में थोड़ी इतना टाइम मिलेगा तुमको, एग्ज़ाम में इतना टाइम तो नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए बस तुमको जस्ट कुछ कुछ चीज़ याद में रखना होगा, बस याद रखने के लिए मैंने टेक्निक भी बताया है ना। तो टेक्निक है तुम्हारे पास तो तुम कर लोगे। सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली कितना आ रहा है, 6/5 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, दिस इज फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। सो IIT जैम में जो क्वेश्चन आया था, तुमको बोला था फॉर यूनिफॉर्म स्फीयर अपॉन फॉर कंडक्टिंग स्फीयर, इसका रेशियो क्या होगा। तो देखो 6/5 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक दूसरे कैंसिल आउट किया, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 6/5 आ रहा है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम था, तो मैंने प्रॉब्लम्स के थ्रू थ्योरी को थोड़ा बहुत बता दिया, बस यही है, यही देखना है, ठीक है। अच्छे से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो नॉलेज आएगा।
है ना। नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, कैसे सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है, राइट। चल बात करते हैं नेक्स्ट, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये भी जैम में पूछा था, राइट, ये वाला प्रॉब्लम भी जैम में ही पूछा था। तो यह भी ना एक नोट डाउन करो, एक नोट लिखो यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नोट है। वर्क डन इन द केस ऑफ work done in the case of uniformly charged sphere ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए जो वर्क डन है, इच मोर कंपेयर टू, क्वेश्चन आएगा इससे, कंपेयर टू कंडक्टिंग स्फीयर। कितना अमाउंट ज़्यादा है, वो 6/5 मल्टीप्लाई करो बस, राइट। So work done in the case of uniformly charged sphere is more compared to the conducting sphere. Hence, energy is also more. Okay. So जो work done for यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर क्या होता है देखो, that is equals to work done 6/5 into work done for conducting sphere. सेम केस, वर्क डन और एनर्जी, बस यही है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा बहुत याद रखो, है ना। नेट में इस तरह का प्रॉब्लम 2 नंबर में आता है, बस तुम इसको अगर अच्छे से तुमने पढ़ाई कर लिया, जस्ट टिक मार के इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत आर का चेंज हो सकता है, ठीक है, अगर रेडियस आर है तब ठीक है, तब इसको याद रख लो, है ना। ओके, राइट। तो दोनों का अगर मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस भी आर है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस भी आर है, तो उसके लिए वाला प्रॉब्लम वैलिड होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम तुमको अच्छे से डील करना आना चाहिए, नहीं तो भाई प्रॉब्लम होगा, नहीं तो भाई प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम देते, तुम लोग खुद से इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वर्क डन in the case of uniformly charged sphere uniformly charged sphere, oh sorry very sorry, मैंने इसको क्यों लिख रहा है, प्रॉब्लम लिख रहा था ना, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। चार्ज डेंसिटी inside a non-conducting sphere, okay, non-conducting sphere is given by rho of r equals to kr. If r is the radius of the sphere,
if r is the radius of the sphere, find the energy of the sphere. Okay, ये IIT जैम का ही क्वेश्चन है. ओके, चलो तुम लोग इसको ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो. मैंने थोड़ा बहुत ऑप्शन भी दे देता हूँ. के स्क्वायर पाई स्क्वायर r to the power 7 upon 7 epsilon naught square. Option B, k square pi r to the power 7 epsilon naught pi square r to the power 7 epsilon naught k square. Option D, pi square r to the power 7 k square upon epsilon naught square. सो ये बेसिकली जैम का क्वेश्चन में पूछा था. चलो इस तो तुम लोग इसको होमवर्क मान लो. तो इसी तरह का प्रॉब्लम्स तुमको कैसे सॉल्व करना है ये तुमको देखना है. ठीक है, बस इसको आराम से एक बार सॉल्व करके पोस्ट कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए. नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का जो जैम का क्वेश्चन है ना, जितना सारा जैम में क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैम में पूरा देखेंगे एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का कितना जो भी क्वेश्चन पूछा है सारे डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. राइट, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू.